Stories of personal sacrifice, a real-life changing moments. Stories of admirable dedication and unshakable faith, and heroic deeds that shaped the destiny of many. The Times Now Amazing Indians Awards 2025 is back once again with some riveting stories of how some everyday Indians are selflessly and tirelessly serving humanity and the voiceless. The platform showcases amazing individuals who may be common by appearance but are uncommon by deeds. In this episode, Times Now Amazing Indians Awards celebrate the winner in the Disability, Inclusion and Accessibility category, presented by Samarth by Hyundai, and then the winner in the Education and Skill Development category. First, Raghu Narsingasa Hubballi, who overcame his own physical disabilities to enable thousands to lead a better life. His amazing efforts also gave him the winning nod from the jury at the Times Now Amazing Indians Awards 2025. His journey was anything but easy. His mobility was limited. His existence was a daily struggle, and his family was trapped in poverty. Raghu Narsingasa Hubballi was born in Ilakal, Karnataka. While he himself faced the challenges of polio, to support his family, he was compelled to beg in the market, making formal education feel like an unattainable dream. Despite these significant challenges, Raghu found solace in night schools, where he completed his 7th grade. जब हमारा गरीब तन में जो वीविंग करते थे, वीविंग का फैमिली में मैं हमारा पिताजी हैबिट थे, मद्यपान व्यसन थे, और मेरा मदर को लेप्रेसिक्यूड था, कुष्ठ रोग बोलते हैं ना, वो कुष्ठ रोग प्रॉब्लम था। उस संदर्भ में मैं एजुकेशन जाने बोला तो एजुकेशन में एडमिशन भी नहीं करते थे। मैं भीख मांगने भिक्षाटन करने के लिए इधर जाता था, क्योंकि माता को बहुत प्रॉब्लम था और पिताजी ने टोटल 7 मेंबर हमारे फैमिली में, वो एक साड़ी बुन के लाना मजदूरी कम था। उस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रात में शाल सिखाने का एक स्कीम था, उसमें मैं रात शाल में जाके वहाँ थोड़ा अभ्यास करता था। बाद मैं शिक्षा करना बोल को गाँव छोड़ के चला गया। बाद में नहीं आपको शिक्षा कराएंगे बोल को, और मेरा माता पिता बुला लेकर आए। 4वीं से मैं 7वीं तक पढ़ा। वहाँ से मेरा जर्नी कुछ ना, ये मैं सवाल उठाया, रिहैबिलिटेशन नहीं है, शिक्षण में तंद्रे है। मेरा एक ही गली में 44 पर्सन विथ डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन थे। उसमें इतना है, अभी जिला में कितना होएगा, राज्य में कितना होएगा, कुछ ना कुछ हम करना है हम ताल्लुक में बोल को मैं एडवोकेसी करने के शुरू किया। This realization deeply impacted him, and within a few years, he resolved to advocate for those facing physical disabilities like himself. However, he recognized that he was not entirely prepared for this mission, and he received valuable guidance from various mentors along the way. मेरे को बहुत ज्ञान नहीं था और एक्सपर्टीज़ नहीं था। मैं काम शुरू किया तो कोई भगवान के रूप में आके सपोर्ट करते आ रहा है, कौन आता कौन नहीं पता नहीं। अभी मैं पूजा करते समय में वहाँ ओल्ड एज होम का 1 रुपया नहीं था पूजा करते समय में। अभी 2 महीने में 7 लाख का बिल्डिंग आके बैठा, क्यों कौन आएगा। मैं अभी ऐसा करना है बोल के सोच करके स्प्रेड करता हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे व्हाट्सएप पे, तू आगे बढ़ना, तेरे को हम सपोर्ट करेंगे बोल को APD संस्था और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमको छोटा से छोटा प्रोग्राम सपोर्ट देते, हमको गाइड देते, ट्रेनिंग देते, मार्गदर्शन देते आए। Raghu was learning and building his team at the same time. He was fortunate to find an associate in Malappa Malagavi,
who recalled those difficult days when Raghu started organizing people with disabilities at the district level, fighting for their entitlements and rights. While he working with many network organizations like BIRDS as well as APD, Association of People with Disability, he identified that there are a lot of scopes to get them empowered perfectly in a literacy as well as a financial inclusion. During that time, actually, he constantly working with person with a disability organization Bengaluru, and he started engaging himself with a lot of advocacy and lobbying efforts with the state level and central level. During that time, actually, he struggled a lot to implement RPWD Act 2016 effective implementation within his districts where he lived, and that is how he started his journey through the sector perfectly. In 2004, driven by a deep understanding of the societal neglect, Raghu mobilized 45 people with disabilities, and together they founded Asha Deepa Angukul Sarva Buddhi Shiva Samstha. Malappa remembers it was the biggest step he took in his life. जो हमारे समाज में बहुत सारे विकलांग के ऊपर काम होना चाहिए, उनका शिक्षा, रिहैबिलिटेशन और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, उनको उद्योग, स्वयं वो उद्योग करना, ये भिक्षाटन ना करना और डिग्निटी लाइफ लीड करना बोल को एक सोच करके टोटल 45 मेंबर्स मिलके हम आशा दीपा संस्था ने प्रारंभ किया. He may have lot of opportunity to finding his own income source actually, but rather than that he motivated himself, and of course his immense pleasure is also the same, and he aligning with his vision and mission, and he started Asha Deepa Angukul Sarva Buddhi Seva Samstha in the year 2004. For Raghu, establishing Asha Deepa was his life's calling. He knew the path for the afflicted could only be through medical help and education. Targeting young children, Raghu focused on early intervention and training for a better life. कर्नाटक में 4 सेंटर काम कर रहे हैं. यहाँ तक अभी हमारा 2000 से ज़्यादा विकलांगों को, यूथ्स को, मैन एंड वुमेन को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और उसमें 75% प्लेसमेंट का काम किए हैं. उनका वो प्लेसमेंट के आफ्टर जो विकलांग कुछ भी संपादन नहीं करता था, अभी वो डिग्निटी से मैं भी संपादन करता हूँ. ये हमारा फैमिली में को देखने का जो काम मिला विकलांग को, उनका देखने का तरीका भी अलग रहता है. घर में उनको बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत उनको गर्व से देखने शुरू करते हैं. कुछ फैमिलियों में शादी भी कर चुके हैं. Asha Deepa has made a transformative impact, reaching 3,400 lives each year. One of their cornerstone initiatives is the computer training program, an intensive 2-month course specifically designed for individuals aged 18 to 40. This program caters to those with locomotor disabilities, speech and hearing impairments, low vision, and mild intellectual disabilities. While there are countless stories of individual transformation, Raghu takes particular pride in a few standout examples. अभी हमारा ट्रेनिंग देके ना संतोष अर्गी ट्रेनर था पंक ट्रेनिंग में, वो बिफोर एजुकेशन में काम करता था. शिक्षा में उनको शिक्षा को हमारा ऑर्गेनाइजेशन से छोटा 1-2-3 हज़ार रुपये उतना ही सपोर्ट किया, बहुत बड़ा नहीं है. उस समय में वो भी काम करना सर, उतना भी पैसा नहीं. एक ही माता उनको भी बहुत तकलीफ, उसको भी बहुत सीवियर डिजेबिलिटी. हम सपोर्ट किए, वो आगे BA बीकॉम करके एमकॉम किया. एमकॉम करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम में आया. अभी 30,000 रुपीज़ सैलरी ले रहा है. वो डिग्निटी से माता को बहुत आराम से देख रहा है, और शादी करने के लिए भी आगे उसका सोच है. वही बहुत बड़ा, ऐसा बहुत सारा कहानी है. Asha Deepa works closely with frontline workers such as Asha workers, Anganwadi staff, and health functionaries, conducting community-level screenings to identify children in need. The services include therapies, individualized family service plans or IFSP, mobility support, referrals for corrective surgery, and community-based intervention. डॉक्टर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, PSC डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बहुत सारे पता है
अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के। हमारा उनका साथ मिला तो बच्चा डेवलपमेंट होएगा, नहीं तो नहीं डेवलपमेंट होएगा। ऐसा रिकमेंडेशन से आते हैं और हमारा स्टाफ कम्युनिटी में पीएससी सेंटर में एवरी गुरुवार दिन जाके स्क्रीनिंग, बेबी स्क्रीनिंग चलते रहता है, इम्यूनाइजेशन डे। वहाँ जाके बच्चों को स्क्रीनिंग करते हैं। वहाँ कुछ बच्चों 100-150 बच्चों आए रहते हैं, उसमें एक बच्चा 2 बच्चा आइडेंटिफिकेशन होते रहता है। उस बच्चों को हम माता पिताओं को यहाँ बुला के उनको बातचीत करके ऐसा बच्चा का डिले है, ऐसा सारा प्रोसीजर करना है। फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंटल करने के लिए चेकलिस्ट रख के उनको आगे क्या करना बोल के हम बात करते हैं। In addition to skill development, Asha Deepa runs a vital women helpline program supported by the government's Women and Child Development Department. Since 2011, it has successfully resolved over 2,300 cases, offering counseling, rescue and resettlement for women in need. To further its holistic approach, Asha Deepa has also promoted the formation of self-help groups, SHGs, and a Parents Federation, empowering women through income-generating activities and advocating for essential governmental support. अभी बच्चों का डेवलपमेंटल डिले, बच्चों को एक पर्सन चाहिए देखने के लिए, क्योंकि उनको नेग्लेक्टेड किया तो वो बच्चा और बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा, उनका इनकम नहीं हो पाता। उसके लिए हम क्या किए, एक एसएचजी से पेरेंट फेडरेशन बना के उनको सेविंग करने लगा कर उनको छोटा छोटा इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में एंगेज करे हैं, वो भी सेविंग करें। Raghu's message to young people emphasizes inclusion and support. He reminds us that with a little assistance, individuals with any of the government recognized 21 types of disabilities and beyond can reach their full potential. They deserve our support, understanding, and a society that fully embraces them. जो ये आशा दीपा फाउंडेशन हुआ है, अच्छा रूप में जो विकलांग का डेवलपमेंट लाना बोल के, वैसा ही मैं नहीं रहे तो भी आगे लोग ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते जाना, परिवार लेकर के उनका ज़िंदगी में सुविधा लाए, वैसा काम करने का। ज़्यादा हमारे विकलांग समुदाय डिग्निटी से लाइफ लीड करना बोले तो ज़्यादा सपोर्ट देना है। और मैं इसमें स्ट्रगल बोल के नहीं, बहुत एंजॉयमेंट करते, बहुत खुशी से कर रहा हूँ सर। यहाँ के लड़कियों को तो छोड़ दीजिए आप, बच्चे भी, लड़के भी स्कूल नहीं जाते थे। और इसी धुन को लेकर मैं विदेश से सब छोड़ करके आ गया। आने के बाद यहाँ पर स्कूल खोला। Dr. Shiva Balak Mishra has overcome immense struggles, faced the weight of fame and endured ridicule to achieve what very few have. कोई भी स्कूल नहीं था गांव में, और थोड़ी दूर पे प्री प्राइमरी यानी कक्षा 1, 2 और 3 के लिए आना पड़ता था। हमारे गांव के लोग भी कक्षा 5 के आगे नहीं पढ़ पाए थे, कोई तो कक्षा 2, 3 के बाद ही नहीं पढ़ते थे। मैंने जब 5 पास कर लिया तो मेरी इच्छा थी मुझे और आगे पढ़ना है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर इटौंजा में जूनियर हाई स्कूल था। मैं पैदल 12 किलोमीटर जाता था और 12 किलोमीटर वापस आता था। तो ऐसी हालत में मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन मन में ये ज़रूर आता था, बार बार आता था कि मुझे अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलना है। और इसी धुन को लेकर मैं विदेश से सब छोड़ करके आ गया। आने के बाद यहाँ पर स्कूल खोला और मेरी पत्नी निर्मला मिश्रा, उन्होंने मेरा बेहद साथ दिया। A deep commitment to his roots and a relentless pursuit of his childhood dream compelled Dr. Mishra to forsake a thriving international career. He returned to India
not for personal gain, but for the benefit of the children in his village. His wife, Nirmala Mishra, became his unwavering partner in this noble mission, dedicating her life entirely to it. They married in May 1972, and by July of that same year, the school was opened. मैं गांव में स्कूल खोलूंगा तो सबको प्लेजेंट सरप्राइज था, एक तरह से आश्चर्य था, और वो खुश भी थे। मेरे पिताजी भी बहुत खुश थे। विश्वास ही नहीं होता था लोगों को कि कोई अमेरिका का जीवन छोड़ करके और यहाँ आ सकता है। वाइफ ने तो समाज के और भी काम बहुत से किए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया और अनेक गांवों में छोटे छोटे स्कूल खुलवाए, और ये विद्यालय तो देखा ही देखा। और इस तरह से मैं सोचता हूँ कि हमने जो सोचा उसे ईश्वर ने सार्थक कर दिया। पिताजी ने ये बात रखी थी कि उनका केवल सपना, भले ही वो विदेश से पढ़े हैं, पर सपना है गांव में स्कूल चलाने का। और 14 मई को उनकी शादी हुई और माताजी ने आते ही ये बात रखी कि भाई अगर स्कूल खुलना है तो वो 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा। तो महीने भर के अंदर ही उनके विवाह के ये स्कूल खुल गया था। माताजी ने और पिताजी ने दोनों ने अपना पूरा जीवन दिया। The early days were filled with challenges. Financial constraints were significant, compelling Dr. Mishra to fund the school from his savings and later his salary, while his wife managed its daily operations. However, through their unwavering dedication, the couple gradually earned the community's trust and respect. मैंने जो है और वाइफ ने 2 और एक दूसरा और गांव का बच्चा था, 3 अध्यापक लेकर के इसको चल पड़े हम। लड़कियों की शिक्षा तो बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन हमारे वाइफ ने जो साथ दिया, उनके प्रयासों से लड़कियों को प्रेरित किया जा सका। वो घर चली जाती थी, महिलाओं से बोलती थी कि आप अपनी बिटिया को हमारे स्कूल भेजो। उन्होंने प्रेरणा महिलाओं को दी, और आज भी करीब 100 में 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। उस समय मैं कक्षा 4 में पढ़ता था कुनौरा प्राथमिक विद्यालय में, जिस समय हमारी मुलाकात मिश्रा जी और प्रिंसिपल साहब से हुई, श्रीमती निर्मला मिश्रा जी से। उस समय कम से कम 7-8 किलोमीटर तक तो कोई रास्ता थी ही नहीं। यहाँ के लड़कियों को तो छोड़ दीजिए आप, बच्चे भी, लड़के भी स्कूल नहीं जाते थे। उस समय प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, दोनों लोग एक एक गांव को जा कर के एक एक गार्जियन थे उसकी लड़की के लिए कि क्यों नहीं पढ़ाते हो। वो ज़माना था जब 7-8 साल की लड़की होती थी शादी कर देते थे लोग। उनको शादी से रोकना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना, विद्यालय को बुलाना, ये सब हमने देखा है। उनका सहयोग जो था वो अतुलनीय है। उनके बराबर तो मेहनत करने वाला आज तक हमने अपनी 60 ईयर्स ओल्ड में हमने नहीं देखा, जितना वो मेहनत करती थी। हमने तो बचपन से स्कूल को एक परिवार के हिस्से के रूप में देखा है। अगर आप देखें आजकल के ज़माने में लोग अपना एक इतवार का 2 घंटा भी समाज के लिए देने में इच्छुक नहीं होते हैं, मगर इन दोनों ने अपना पूरा जीवन दिया। तो जो समर्पण की भावना थी विद्यालय के लिए, समाज के लिए, वो बहुत अलग थी जो हमने घर में देखी है। The institution, Bharatiya Grameen Vidyalaya, has continuously evolved. From its humble beginnings with thatched roofs, it has transformed into a vibrant center that offers formal education, vocational training, health services, and women's empowerment programs. यहाँ छठे में एडमिशन के लिया, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें तक हम यहाँ पढ़ाई किया। पास होकर 10वां हाई स्कूल 79 में चले गए बाहर। भैया सब काया पलट हो गई और अब तो सब पक्का ही नज़र आ रहा है। पत्नी ने शुरू किया था सिलाई का कार्यक्रम, उसमें बहुत महिलाएं अपने घर के कपड़े सिल लेती हैं, बेचती चलाती हैं, और बहुत से लोग स्वावलंबी हो गए हैं और वो अध्यापन का काम करते हैं।
तो उससे उनके परिवारों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और न केवल वे लोग पढ़े हैं बल्कि उनके परिवारों के लोग भी पढ़ रहे हैं और एक महत्वाकांक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपने लोगों को पढ़ाया तो, मगर उसके बाद आप कैसे उनको एक जीविका तक पहुंचाएं, वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत प्रयास हम लोगों ने किए। कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो कैसे वो एक जंप करें, अपने कैरियर में आगे जाएं। कुछ बच्चे हैं जो कि 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं अच्छी पोजीशंस में, और वो इसी विद्यालय से पढ़ करके गए हैं। This transformation gained momentum when Dr. Mishra's twin sons, Shailesh and Nilesh, introduced digital learning tools and computer education, pioneering advancements that were ahead of their time in rural settings. मेरे बच्चे उन्होंने भी इसके विद्यालय में रुचि लिया। कंप्यूटर लैब हमारे पास आज है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्यवस्था करी। कई लोग बॉम्बे से, चंडीगढ़ से और यहाँ तक कि वाशिंगटन से भी क्लासेस लिया करते थे। जब कोविड हुआ तो हमारा विद्यालय डिजिटल फर्स्ट होने के कारण पहले से तैयार था उस चीज़ के लिए, और इसके बाद जो नया ज़माना आ रहा है एआई का और मॉडर्न टूल्स का यूज़ करना सिखाने वाले हैं बच्चों को, जिससे कि वो डिज़ाइनिंग वगैरह की तरफ जाएं। Today, the school continues its vital mission of providing value-based education to 512 students, with 62% being girls and 78% hailing from Dalit or backward caste families. यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की सुविधा है। यहाँ कंप्यूटर्स भी हैं और लैब्स भी है, यहाँ टीचर बहुत सपोर्टिव रहते हैं। मेरा सपना है कि मैं IAS बनूँ और इस स्कूल में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टीचर्स का सपोर्ट रहता है। Dr. Shiva Balak Mishra's life is a testament to the power of education as a true liberator, choosing service over self and a village school over fame. He created a legacy that transcends the walls of Bharatiya Grameena Vidyalaya. He empowered countless individuals, showing how one dedicated person, supported by family and community, can change lives. His dream continues to inspire, lighting the path for generations to come. आने वाले दिनों में मैं रहूं न रहूं, काम चलता रहे। मेरी उम्मीद है कि ये विद्यालय चलता रहेगा, तो इसका भविष्य में देखता हूं कि हो सकता है एक डिग्री कॉलेज बन जाए। अगर बन जाएगा तो मेरी आत्मा को बहुत संतोष मिलेगा। अपने को बहुत ज़्यादा संपन्न या धनी बनाने के बजाय समाज को दे दो जो कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से भला होगा लोगों का और सुख मिलेगा अपने को। These Times Now Amazing Indians winners have brought compassion to the lives of thousands. Stay tuned, as next weekend, Times Network will be bringing stories of another set of amazing Indians.